तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं दीप भाटिया जी का, और उसके बाद हम इसके बारे में ये वेबिनार शुरू करेंगे। From darkroom photography to digital photography, Deep Bhatia ji has arrived a long way in realism photography, from darkroom photography to lightroom photography. His initial journey into photography started as a hobby in 1986 while working as an economic officer in Government of India. In his debut year itself in photography, he won first prize in a photo competition organized by Government Museum and Art Gallery, Chandigarh. This first step inspired him to further follow his hobby passionately, and it wasn't long before he was taking a giant stride in this field. He expertised the same with post-processing software, Adobe Photoshop. In his photographic journey of more than 34 years, he has bagged more than 500 national and international awards, more than 5,000 acceptances in national and international salons, photo competition, and his work has been exhibited across 24 countries beside India. He also owned EFIP, FIAP, and FIIPC. Also, in many national and international photographic competition and salons, he has been an eminent jury member. He has showcased his work in solo shows, 2 in Chandigarh and 1 in Patiala. For sharing the knowledge, he has set up a photography school in the name of Deep Bhatia Photography School at Jirkapur, Chandigarh. He is conducting online classes which covers almost every genre, including every genre, including water droplet photography, still life photography, Photoshop, surreal photography, conceptual photography, and studio portraiture. He has also authored an e-book on fundamental of liquid droplet photography, which has won generous prize from all photographic enthusiasts. Image capture at 1:1500 seconds. 2 or 3 water drop is an exceptional photo capturing technique. He is the co-founder of Tri-City Photo Art Society and presently the advisor of the same. It is also known as Tapas. For Deep Bhatia ji, photography is a never-ending journey leading to exciting experience along the way. तो ये कुछ जानकारी इनके बारे में थी, और ये अब जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ वो कुछ वेबिनार के बारे में है। तो हम किसी को अनम्यूट नहीं करते हैं हमारे वेबिनार के दौरान। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है, तो आप ये जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे जब टाइम मिला तब। एंड once again, I welcome you all, and once again, I welcome you, Deep Bhatia ji. Stage is all yours. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. हाँ जी। Namaskar सबको. Good evening. My name is Deep Bhatia. I am from Zirkpur, Chandigarh. तो डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, और मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर हितेश पटेल जी का और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने मुझे आज यहाँ मौका दिया है कि मैं जो अपनी आर्ट है, अपनी नॉलेज है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के बारे में आपके साथ शेयर कर सकूं। जितनी भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है, आज मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और चलिए मैं सीधा पीपीटी शेयर करता हूं। और आज का जो टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
और बीच में 1 या 2 बार एंड में तो ज़रूर सभी को कवर करेंगे, नहीं तो बीच में भी कुछ हम क्वेश्चन को ले सकते हैं। हाँ जी। ये मेरी जो डिटेल है डॉक्टर साहब ने सारा पढ़ दिया है, और फोटोग्राफी मेरा पैशन है। रिटायरमेंट के बाद इसको प्रोफेशन भी बनाने की कोशिश की है। मेरी हॉबी थी कि जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, मेरी एक वीकनेस थी, मैं लोगों को सिखाता था। लोग सीखना ना चाहें चाहे ना चाहें, मैं उनके पास जाकर सिखाता था, क्लब बना के सिखाता था। काफ़ी क्लब बनाने की कोशिश की मैंने, फोटोग्राफी क्लब्स। लेकिन मैंने देखा कि जो अगर किसी चीज़ के पीछे थोड़ा प्राइस जुड़ा है तो उसकी वैल्यू होती है। अगर किताब आपको कोई फ्री में मिल जाए, 2000 रुपये की किताब फ्री में मिल जाए, लोग पढ़ते नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता उसको। जिस किताब का हम प्राइस पे करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हाल ही में कोविड स्टार्ट होने के बाद ये ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की है, और आज का जो भी नॉलेज है, जो भी सीखा है, कोशिश कर रहे हैं कि उसको सिखाया जाए। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी definition. A still life is a work of art depicting mostly inanimate, lifeless subject matter, typically commonplace objects which are either natural, food, flowers, plants, rocks, shells, etc., or man-made drinking glasses, books, vases, jewelry, coins, pipe, etc. यानी स्टिल लाइफ फोटोग्राफी बेजान चीज़ों की फोटोग्राफी हम करते हैं, लाइफलेस, और उसमें लाइफ डालने की कोशिश करते हैं। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी की जो टाइप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज, इसको टेबल टॉप फोटोग्राफी भी बोलते हैं, और एक फाउंड स्टिल लाइफ फोटोग्राफी होती है जो हम बाहर नेचुरली हमें स्टिल लाइफ मिलती है। फाइन आर्ट स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी एंड फ्रूट फोटोग्राफी। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए, इसके लिए मैं कुछ रीजन बताना चाहता हूँ। मेरा अपना तजर्बा है कि इट्स ए गुड फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एक बेजान चीज़ों के साथ उसका टोन्स, उसके कलर, उसका शेप्स, उसके लाइंस की हेल्प से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और इसका एक और फायदा है कि कम इक्विपमेंट से ये हो जाता है। अगर आपके घर में एक टेबल लैंप है, उससे भी आप स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। विंडो लाइट आ रही है, उससे भी स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। फैंसी स्टूडियो की हमें जरूरत नहीं है इसके लिए। दूसरा फायदा, यू आर इन कंट्रोल। सारे जो मॉडल्स है आपके कंट्रोल में है। मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी करता हूँ, लेकिन मॉडल मेरे कंट्रोल में नहीं, उसका एक्सप्रेशन, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मूव हो जाते हैं। इस स्टिल लाइफ जॉनरा का एक फायदा है कि जो मेरे मॉडल है, जो जहाँ मैंने रखा है वहाँ से हिलेंगे नहीं। और लैंडस्केप में क्या होता है, लाइटिंग वेरी कर जाती है। दूसरा है इन द कंफर्ट ऑफ योर होम और स्टूडियो। हाँ, इसको कहीं भी छोटी सी जगह में इसको कर सकते हैं। नो फैंसी प्रॉप्स रिक्वायर्ड, ऑर्डनरी। मेरे आप प्रॉप्स देखेंगे आगे कि मैं बहुत ही ऑर्डनरी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। एक सबसे बड़ा फायदा, मास्टरिंग स्टिल लाइफ फोटोग्राफी मेक्स वन ए बेटर फोटोग्राफर। जो बिगनर है, अभी आगे उभरते हुए कलाकार है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टिल लाइफ फोटोग्राफी मास्टर कर लेते हैं तो इससे जो है हमारी फोटोग्राफी की लर्निंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं इसमें, कंपोजिशन के रूल्स। इन स्टिल लाइफ फोटोग्राफी वी क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी। और बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल है, ऐसा नहीं कि जो मेरा स्टाइल है वही ठीक है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के लिए। वर्ल्ड ओवर लोग अलग अलग तरीके से स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। ये एक अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही है, तो एक ग्रुप है आर्ट ऑफ स्टिल लाइफ, फेसबुक ग्रुप है। यहाँ कंपटीशन डेली बेसिस पे अवार्ड देते हैं, तो यहाँ मैं भी भेजता हूँ पिक्चर्स। मेरी पिक्चर को भी अवार्ड है, लेकिन जो डिफरेंट पूरी दुनिया के जो आर्टिस्ट है उनका मैं ये देखना चाहता हूँ, जो मेरा स्टाइल है
एक स्टाइल है, लेकिन बहुत सारे स्टाइल अभी इस टाइम चल रहे हैं, जो ट्रेंड है। तो ये कुछ इमेजेस है, ये कुछ फ्रेम्स है। इसमें मेरी पिक्चर आपको अलग से दिख जाएगी, लेकिन जो बाकी है, बाकी भी अच्छे हैं। बाकी उन्हें उसमें भी क्रिएटिविटी है, उसमें भी रूल्स को फॉलो किया गया है। ये आपकी चॉइस है कि कौन से स्टाइल को फॉलो करना है। हर फ्रेम में मेरा भी एक अवार्ड विनिंग इमेज है, बाकी भी पिक्चर्स है। तो डिफरेंट स्टाइल है, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स यूज करते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स यूज करते हैं, घर में जो भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और लाइफलेस, एक फोटो में इन्होंने बिल्ली का इस्तेमाल किया, कैट का इस्तेमाल। मुझे लग रहा है कि ये शायद ये टॉय होगा। तो अब बात करते हैं माय इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन जो स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के है, ओल्ड मास्टर्स वर्क्स। इंटरनेट पे किताबों में मैंने देखा है, जो पुराने ओल्ड मास्टर होते थे, पिकासो है और रेनेसांस पीरियड और बहुत सारे हैं ये। और दूसरा, उनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। दूसरा, हमारे अपने राकेश सियाल जी, जो हमारे पड़ोसी है लुधियाना से, उनकी फोटोग्राफी से मैं इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन स्टाइल मैंने अपना डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं थोड़े से फ्यू वर्क्स बाय ओल्ड मास्टर्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, थैंक्स टू द आर्टिस्ट एंड पब्लिशर ऑफ दीज वर्क्स। थोड़ा सा ये मैं दिखाना चाहता हूँ, जो पेंटर्स होते थे ओल्ड मास्टर्स, वो कैसे पेंट करते थे। जो आज हम रूल्स को फॉलो करते हैं, सारे रूल्स वो फॉलो करते थे, ओल्ड मास्टर्स वर्क्स। तो सेम पैटर्न को, सेम झलक मेरे वर्क्स में आपको देखने की मिलेगी। इसीलिए मैं अपने बैकग्राउंड को भी, प्रॉप्स को भी पेंट करता हूँ। और हमें इंस्पिरेशन जहाँ से भी मिलती है लेनी चाहिए। अब आगे आते हैं स्टिल लाइफ इमेजेस बाय, मेरे जो इमेजेस है, इसके बाद कुछ इमेजेस यहाँ शेयर करते हैं। उसके बाद बीच बीच में मैं कुछ रूल्स, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक से बात करता रहूँगा। जैसे दीप भाटिया जी उसमें मतलब एक फोटो में स्प्लैश था, टोमेटो सूप में गिर रहा था और स्प्लैश था, जी, तो उसे भी स्टिल लाइफ फोटो माना जाएगा क्योंकि उसमें मूवमेंट है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मोमेंट है, लेकिन फिर भी स्टिल लाइफ ही है। मोमेंट है लेकिन लाइफ लेस है। ओके, वाटर है, दैट्स लाइफ लेस। तो मान ली ड्रॉपलेट फोटोग्राफी को भी एक तरह की स्टिल लाइफ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी कैटेगरी में आती है। ओके, तो स्टिल लाइफ में तो ये अलग जॉनरा है, ड्रॉपलेट फोटोग्राफी। ये मैं चाहता हूँ कि तो स्प्लैश और स्मोक को स्टिल लाइफ में ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? या कर सकते हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। Keeping my compositions simple, I try to create and enhance following by using props, lighting, composition and post processing. मेरी पिक्चर में मैं एनहेंस करता हूँ, क्रिएट करता हूँ मूड, एस्थेटिक्स, इमोशंस, इम्पैक्ट, wow factor, and I try to make extraordinary from ordinary of the props. यहाँ से मैं थोड़ा अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। और मुझे अभी तक जो मैक्सिमम अवार्ड मिले हैं, वो स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में ही मिले हैं। ये मेरे जो फेवरेट 4 जॉनरा में मैं काम करता हूँ, जिसमें स्टूडियो पोर्ट्रेचर है, क्रिएटिव डिजिटल मैनिपुलेशन, स्टिल लाइफ एंड वाटर ड्रॉपलेट। लेकिन मैक्सिमम अवार्ड्स स्टिल लाइफ में।
सो ये जो मेरे प्रॉप्स है, प्रॉप्स को एज ए एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के बारे में आगे बात करूंगा, जैसे डिफरेंट एलिमेंट है, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, फॉर्म्स है। ये जो अगर पीछे मैंने प्लेट यूज की है, एक सर्कुलर शेप, एज ए सर्कुलर शेप यूज करने की कोशिश इसको नहीं है। ये प्लेट नहीं, मेरे लिए प्लेट नहीं है। तो डिफरेंट बॉटल, सिंपल प्रॉप्स, और इसमें लाइटिंग इफेक्ट, टोनल वैल्यूज, टोन का कंट्रोल, रोल ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, इसमें 40% मैं मानता हूँ। जो आपसे कैमरा से जो आपको मिल गया, उसके बाद टोन्स को बैलेंस करना है, टोन्स का जो आपका जो जो मूड क्रिएट करना है, जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, उसको फर्दर पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो मेरे जो प्रॉप्स है वो बहुत सिंपल होते हैं। मैं जंक स्टोर में जाता हूँ, जिसको कबाड़ी की दुकान बोलते हैं, वहाँ से मुझे बॉटल्स, प्लेट्स, अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट जो है वैरायटी जिसमें हो, जिसमें इंटरेस्टिंग शेप्स हो, उन प्रॉप्स को मैं कलेक्ट करता हूँ, पहला काम। और इसको मुझे 2 साल कलेक्शन में लगे हैं, सारी प्रॉप्स है। आज मेरे पास 1000 के करीब प्रॉप्स है। और कीप इट सिंपल। पहली चीज है, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में अपनी कंपोजिशन को सिंपल रखिए। तो विजय जी और देशभूषण जैन की तरफ से सवाल है, दीप जी, जी। कि आर द प्रॉप्स पेंटेड, व्हाट कलर इज यूज्ड? ओके, बीके अग्रवाल जी की बात कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, बीके अग्रवाल जी नमस्कार। मैं आपको देखा था, तो आपका वर्क से बहुत इंस्पायर्ड है, हम आपके फैन हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो पेंटिंग के लिए मैं डिफरेंट टाइप के कलर यूज करता हूँ, जिसमें स्प्रे पेंट भी यूज करता हूँ, ये जो डिस्टेम्पर भी यूज करता हूँ, प्लास्टिक एमल्शन भी यूज करता हूँ, एक्रेलिक पेंट भी यूज करता हूँ, और सिंपल जो पेंट है दरवाजों में करने वाला वो भी यूज करता हूँ। और ये डिपेंड करता है कि मुझे शाइन चाहिए या मुझे मैट फिनिश चाहिए, शाइन चाहिए, उस हिसाब से मेरे प्रॉप्स सभी कलर से पेंटेड है। तो ये जो एकदम मैट फिनिश देते हैं, बिल्कुल ही उसमें साइन या रिफ्लेक्शन नहीं है, तो उसके लिए कैसा पेंट सिलेक्ट करना चाहिए सर? इसके लिए मैं जो यूज करता हूँ, कई बार ये चौक मिट्टी होता है, चौक मिट्टी है, डिस्टेम्पर है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। ओके। तो इसमें जो शाइन नहीं होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मिनिमम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करो, नॉट मोर देन 6। 3 से 6 एलिमेंट या प्रॉप्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छी फॉलो द रूल्स, जो कंपोजिशन के रूल्स है। आज मैं फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन बात करूंगा, लेकिन रूल्स सभी को पता होगा, तो आप सबको उसकी मैं बात नहीं करूंगा। जो भी हमारे कंपोजिशन के रूल्स है, फोटोग्राफी के रूल्स है, उसको हमने फॉलो करना है, और स्टिल लाइफ में ज़रूरी फॉलो करना है। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉप्स। अगली बात है कि हमें स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए सबसे पहले हम घर में ट्राई करते हैं, घर में क्या अवेलेबल है। जब घर में आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम बाहर जाते हैं। बाहर से इंटरेस्टिंग प्रॉप्स जो आपके माइंड में है कि क्या आप क्रिएशन बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम कलेक्शन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है, सबसे इम्पोर्टेंट है अरेंजमेंट। प्रॉप्स तो आपके पास है, मेरे पास 1000 प्रॉप्स है, उसको अरेंज करना है, उसकी कंपोजिशन करनी है। तो कंपोजिशन इज एवरीथिंग। कौन सी चीज कहाँ रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस से आता है। मैं कई बार जब अपना सेशन शुरू करता हूँ अपने स्टूडियो में, तो मुझे 2 घंटे पहला सेटअप तैयार करने में लगता है। मुझे मजा ही नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। चीज को यहाँ से उठा के वहां रखते हैं, वहां से वहां रखते हैं,
प्रॉप्स को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, लाइटिंग चेंज करते हैं, और एक बार जब मोमेंटम बन गया तो उसके बाद शाम तक जो है 500 पिक्चर हम शूट कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कंपोजिशन में टाइम लगेगा। लाइटिंग प्लेज ए ग्रेट रोल। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, लाइटिंग इज ऑल्सो एवरीथिंग। लाइटिंग जैसे मैंने बताया कि डे लाइटिंग, विंडो लाइटिंग, टेबल लैंप लाइटिंग, कांस्टेंट लाइटिंग, एनी लाइटिंग विल डू। लेकिन अगर बढ़िया करना है तो बड़ा सॉफ्ट बॉक्स, मैं 135 mm का ओक्टा विद ग्रिड इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कि हमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगली चीज़ है कि हाउ टू विजुअलाइज एंड मेक ए स्केच ऑफ योर आइडियाज। सबसे पहला काम हमने करना है कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, हर इंसान आर्टिस्ट है, उसके अंदर आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया है आपका, क्या आइडिया है, पहले कागज पे तो बनाओ उसको। एक स्केच बनाना है। कीप ए स्केच बुक एंड स्केच योर आइडियाज। रफ आपका जो स्केच है 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। हमें ये फैंसी जस्ट आपने अपने लिए चाहिए कि बोतल कहाँ रखूंगा, प्लेट कहाँ रखूंगा, फ्रूट कहाँ रखूंगा, और उसको बना लीजिए और बहुत सारे स्केच बनाइए। उसके बाद कंपोजिशन मैं इस तरह से शुरू करता हूँ। कंसीव आइडियाज अराउंड फॉलोइंग शेप्स। यूज ऑफ ज्योमेट्री। Using geometric shapes in your photography is a great habit to get into, as each shape has its own emotional feel to it. ये कुछ देखिए, ट्राइंगल है और एल शेप है, राउंड है, सर्कुलर शेप्स। इसमें हमें ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो 3 शेप्स है, इसमें हमारी कंपोजिशन होती है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, डायगोनल, सी, और नीचे टी है, वाई है, एस है, वी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इस फॉर्म में हमें स्केच आपका आइडियाज को करना है। अब कुछ और मैं अपने इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे ये कप को मैंने स्प्रे पेंट, गोल्डन स्प्रे पेंट आता है, उससे पेंट किया है। स्पून को भी गोल्ड किया है। और ये जो बॉटल, बड़ी वाली बॉटल है, ये बड़ी मुश्किल से मुझे जंग स्टोर से मिली है। इसको मुझे जो बॉटल्स है 50 पैसा से लेके 300 रुपीज़ तक, ये जो कबाड़ी होते हैं उनसे मैंने बोतल ली। जो मुझे पसंद आ गई, वो कीमत मांगते हैं उसको मैं देता हूँ उसको। ये पता नहीं कौन सी बोतल है, लेकिन इसकी शेप बहुत अच्छी है, सेंटर वाली। उसके बाद इनको पेंट करते हैं और इसका जो इस तरह से कंपोजिशन। और कंपोजिशन का मैं बता दूं, अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी, जब आपकी सही कंपोजिशन हो जाती है, आप 1 सेंटीमीटर भी प्रॉप या एलिमेंट को मूव करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं सिंपल प्रॉप्स। और मैंने क्या किया कि कलर करने से मेरा आइडिया क्या है, क्यों मैं कलर करता हूँ मेरे प्रॉप्स को, टू मेक थिंग्स सिंपल। मेरा जो आइडिया है, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं टोटल सिंपल कर देना चाहता हूँ। क्योंकि जो प्लेट है, सारे प्रॉप्स है, कोई किसी कलर का होगा, कोई किसी कलर का, तो मैं लो की और हाई की में ज़्यादातर काम करता हूँ। तो इसके आगे बात करेंगे लो की हाई की क्या होता है। और इसके अलावा मैं आर्टिफिशियल फ्लावर का इस्तेमाल भी करता हूँ। और बहुत सारी बैकग्राउंड मैंने पेंट करता हूँ। आई पेंट माई बैकग्राउंड माई सेल्फ। एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी दूसरे पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो ओल्ड मास्टर्स वाला टच है वो मैं लाना चाहता हूँ। तभी इन्हीं मेरी पिक्चर को अक्सर पीछे एक रिजल्ट आया जिसमें कि 9 अवार्ड में से 4 अवार्ड स्टिल लाइफ में, दो कलर में, दो ब्लैक एंड व्हाइट में। सो ये अगेन ये दूसरा पेंटेड बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पेंट करने से एक डायमेंशन ऐड होती है, एक क्रिएटिव फैक्ट, एक आपका अपना क्रिएटिविटी झलकती है इसमें। लेकिन इसमें हमें कलर को पिक करना, इसमें केयरफुली हमें कलर को चूज करना पड़ेगा।
और बाकी के कंपोजिशन में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे ये कंपोजिशन है, सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इनको यहाँ इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। एक एक चीज को मूव करते रहते हैं और तब होता है। और थोड़ा सा रूल्स की बात करते हैं। तो ये मतलब ऐसी फोटोग्राफी है जिसमें सब कुछ कंट्रोल में है, तो यहाँ जजेस कोई मतलब दया नहीं दिखाते अगर कुछ गलती है तो, राइट? क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर इसमें कोई भी गलती है तो जजिंग के टाइम पे कोई आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा, कोई तैयार नहीं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर, दूसरी बात ये कि जो आपने बैकग्राउंड के बारे में बात की सर, तो करीबन इसके लिए कितना बैकग्राउंड चाहिए, मतलब कितना कपड़ा या कितना ये अगर ले और पेंट करना शुरू करे तो ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड बनेगा? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब। ये देखिए, मैंने पहले जो ऑर्डिनरी चार्ट पेपर आते थे स्टेशन शॉप, वो यूज किया, लेकिन वो बहुत फेलियर। उससे एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं होता और साइज छोटा होता है। उसके बाद मैं यूज करता हूँ 30x42 साइज का माउंट शीट्स मिलती है मार्केट में। बड़ा साइज है, 30 इंच x 42 इंच। और कुछ कैनवस पेंट किए हैं मैंने, जो स्टूडियो पोर्ट्रेचर के लिए कैनवस होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जो पिछली पिक्चर में था, ये जो है कैनवस है। ये इसकी हाइट करीब 6 फीट के करीब है और चौड़ाई कम होती है क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए होता है, तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो 30x42 इंच। अच्छा, और मतलब कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए, कैमरा कितनी दूर रखना चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ? ठीक है। देखिए लेंस, वैसे लेंस का आगे टॉपिक आएगा डॉक्टर साहब, उस टाइम कवर कर लें इस बात हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर ठीक। जरूर। अब देखिए, फॉलो द रूल्स। मैं फोटोग्राफी वाले रूल्स या कंपोजिशन वाले रूल नहीं बता रहा हूँ इसमें। डिजाइन वाले रूल्स जो है, जो आर्टिस्ट डिजाइनिंग करता है, लोगो बनाता है, कुछ और डिजाइन कर, पोस्टर डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट अपना डिजाइनिंग करता है, तो उसमें कुछ फंडामेंटल्स है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। दो चीजें मेरे ख्याल स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में हमें मदद कर सकती है। पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। Understanding the fundamentals of design is the first step to creating cohesive and harmonious visuals. The elements of design are the ingredients that go into a recipe, while the principles of design are the recipe, telling you what to do with the ingredients. एक खाना हम बनाते हैं तो जो एलिमेंट्स है वो हमारे अलग अलग आइटम्स होगी, अलग अलग सब्जियां होगी, कोई मसाले हो गए, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है जब हम उसको बना देते हैं तो वो वहाँ लागू होता है। सो 7 एलिमेंट्स होते हैं, इसकी मैं बात करूंगा। और एक फ्लोटिंग विंडो आ रहा है। हमें नहीं दिख रहा है सर, हमें तो खाली यही दिख रहा है। नहीं, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलिए। हाँ जी। सो 7 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। These are the basic elements that are used by artists in creating art. They are what you use to create an aesthetically pleasing work. When we make art, we need to understand and apply these 7 elements of art: line, shape, color, value, form, texture, and space. 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, हम स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले है लाइन। हम जो हमारे प्रॉप्स है जिसमें लाइंस है, हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। शेप, डिफरेंट टाइप की शेप है, ज्योमेट्रिक शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और ओवरले, बहुत सारी शेप्स है। उसके बाद ज्योमेट्रिक शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप।
ऑर्गेनिक शेप्स होती है नेचुरली, जैसे एक फ्रूट होते हैं, ये हमारा पियर की शेप है, ऑर्गेनिक शेप है. फॉर्म, form in art. Form is an element of art that is a three-dimensional geometry figure: sphere, cube, cone, cylinder, prism. Space, negative and positive space. स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में या किसी भी आर्ट फॉर्म में हम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं. पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल. कई बार नेगेटिव स्पेस का अगर प्रॉपरली हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर, कलर का इस्तेमाल. स्पेस है, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस का बात होगी. वैल्यू है, इंटेंसिटी, ह्यू कितना हमने यूज करना है, तो एलिमेंट हो गया. उसके बाद टेक्सचर है, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर, रेगुलर, नियर रेगुलर, इरेगुलर. ये इसके ब्रीफली मैं बात करूंगा जस्ट कि आप सब लोगों को वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ एक्सपर्ट बैठे होंगे ऑलरेडी, आर्टिस्ट होंगे, लेकिन फिर भी जो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लेकिन ब्रीफली इसकी बात करेंगे. और प्रिंसिपल की बात करते हैं. पहले मैंने एलिमेंट्स की बात की और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर एसेंशियली a set of criteria which are used to explain how the visual elements are arranged in a work of art. The elements of design are the ingredients that go into a recipe, while the principles of design are the recipe telling you what to do with the ingredients. हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में है यूनिटी एंड हार्मनी, वैरायटी, एम्फेसिस, बैलेंस, मोमेंट, रेपिटेशन, पैटर्न, इंटरप्शन, रिदम एंड प्रोपोर्शन. इन चीजों का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कंपोजिशन के दौरान. और यूनिटी एंड हार्मनी, यूनिटी हार्मनी हम कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आपने ओल्ड मास्टर का वर्क दिया होगा, देखा होगा, देखिए इसमें मैंने 5 एलिमेंट से 5 प्रॉप्स यूज किए हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है एंड जो फोटोग्राफ है वो एक सिंगल यूनिट लगना चाहिए, वो 5 नहीं लगने चाहिए. उसके लिए टेक्निक है ओवरलैपिंग टेक्निक. एक एलिमेंट दूसरे के साथ ओवरलैप होता है. बहुत सारे नए लोग जो नौसीखे होते हैं वो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को अलग अलग से प्लेस कर देते हैं, जिससे कि वो यूनिटी नहीं होती, ना उसमें हार्मनी है ना यूनिटी है. जो प्रिंसिपल है डिजाइन का, पहला प्रिंसिपल है कि हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी. कलर की वजह से भी हो सकता है, टोन की वजह से भी, एलिमेंट की प्लेसिंग की वजह से भी. Harmony is the principle of art that creates cohesiveness by stressing the similarities of separate but related parts. Harmony is about using similar colors, shapes, sizes of objects, etc. This creates a sense of connection between the objects. Unity is about separate parts working together. We can better understand unity by thinking about a car. एक कार है, उसमें बहुत सारे पार्ट ही चलते, लेकिन कार इकट्ठी एक यूनिट में चलती है. वैरायटी है. देखिए बहुत ज्यादा यूनिटी आर्ट में बोरिंग होती है. अगर यूनिटी होगी, हार्मनी होगी, वो जो हमारा वर्क ऑफ आर्ट इतना सक्सेसफुल नहीं होगा. उसके बाद वैरायटी है, उसके बाद वैरायटी चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है. ना टोटल यूनिटी होनी चाहिए, ना टोटल वैरायटी होनी चाहिए. बीच का क्या होना चाहिए? Variety is the use of several elements of design to hold the viewer attention and to guide the viewer's eye through and around the work of art. For instance, mixing organic shapes with geometric shapes adds variety. All harmony and no variety is boring. Variety is the spice of life. Variety is the principle of art that adds interest to an artwork. आपने मेरे वर्क में देखा होगा कि हर पिक्चर में मैं एक वैरायटी लेके आता हूँ. उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस. आपने मेरी हर वर्क में एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, एक टच ऑफ कलर, वो है एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए. एम्फेसिस इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन दैट कैचेस द व्यूअर्स अटेंशन.
Usually the artist will make one area stand out by contrasting it with other area. The area could be different in size, color, texture, shape, etc. Emphasis. ये सभी यूनिटी है, पीछे जितनी भी बॉटल है एक ही कलर की है, एक ही शेप की ऑलमोस्ट। अगर ये नीचे जो टच ऑफ एक रेड कलर का एक ग्लास नहीं होता तो ये बोरिंग था, इनकम्प्लीट था। तो एम्फेसिस एंड वैरायटी लाने के लिए कुछ इस तरह से जरूरी है हम ऐड करें। Emphasis is the part of the design that catches the viewer's attention. Usually, the artist will make one area stand out by contrasting it with others. उसके बाद है बैलेंसिंग। ये हमारा रूल ऑफ कंपोजिशन फोटोग्राफिक रूल में भी है, जो विजुअल वेट का बैलेंस होना चाहिए। Balance is the distribution of the visual weight of objects, color, textures, and space. If the design was a scale, these elements should be balanced to make a design feel stable. एक एलिमेंट को दूसरे से बैलेंस करना है। देखिए यहाँ आपने बीच में एक एलिमेंट देख रहे हैं, एक इसको मैं एज ए लाइन, कनेक्टिंग लाइन इसको रखा है। यहाँ ये एक प्रॉप है, एक जस्ट एक पाइप का टुकड़ा है जिसको मैंने पेंट कर दिया है। इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यूनिटी क्रिएट करने के लिए इसको बीच में रखा है। और ये जो बड़ी बोतल है इससे बैलेंस करेगी। सिंपल कंपोजिशन, ओनली 4 एलिमेंट्स यूज्ड। सो मोमेंट हमारा हो सकता है डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वगैरह वगैरह। मोमेंट इज द पाथ द व्यूअर्स आई टेक्स थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट, often to focal area. Such movement can be directed along lines, edges, shape, and color within the work of art. Pattern is the repeating of an object or symbol all over the work of the art. इस तरह से फ्लो मोमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये स्नेक जो है आर्टिफिशियल है, तो एक मेले से मिल गया था। देन आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन ये भी एक डिजाइन का प्रिंसिपल है। रिपीटिशन होना चाहिए, लेकिन रिपीटिशन ओनली बोरिंग है, कंप्लीट नहीं है। उसके बाद इंटरप्शन होना चाहिए। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्रिएट्स यूनिटी विद इन द वर्क ऑफ आर्ट। रिपीटिशन है, ये मेरा वर्क है, इसमें एक इंटरप्शन क्रिएट करने के एक टच ऑफ रेड, एक प्रॉप मैंने इस्तेमाल किया है। एक सिंदूर दानी है जिसको स्प्रे पेंट से मैंने रेड पेंट कर दिया है। इंटरप्शन होना बहुत जरूरी है। इस तरह से स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में अकेला यूनिटी, हार्मनी, पैटर्न के साथ इंटरप्शन होना जरूरी है। पैटर्न is a repetition of elements, and to apply the breaking the pattern composition, you must capture the interruption of the flow of a pattern. Broken repetition can be done by removing a repetitive element or adding a contrasting object into a pattern. Patterns are eye-catching, but for a long period, viewers may lose interest due to the repetition of the element itself. By breaking it gives more depth and interest that would make the viewer more engaged towards your image. So rhythm, इस तरह से मैंने रिदम क्रिएट करने की कोशिश की है मेरे वर्क ऑफ आर्ट में। Rhythm is created when one or more elements of design are used repeatedly to create a feeling of organized movement. Rhythm creates a mood like music or dancing. To keep rhythm exciting and active, variety is essential. So the pattern है, pattern is the repeating of an object or symbol all over the work of art. Proportion का इस्तेमाल कर सकते हैं। Proportion refers to the relative size and scale of the various elements into design. Proportion.
सो ये कुछ और मेरे आगे वर्क है। एक बॉल है, बच्चों की बड़ी बॉल है, जिसको मैंने बच्चों की खेलने वाली रबड़ की बॉल है, इसको मैंने पेंट कर दिया है। जो भी घर में मिलता है, जहाँ भी से भी उसका इस्तेमाल करें। एक बार ओनियन के पीछे कमी होगी तो हमारे नेबरिंग कंट्री से ओनियन आया तो बहुत ही बढ़िया था। इसका मैंने काफ़ी फोटोग्राफी की है। जनरली मैं एक ही लाइट इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने बैक लाइट भी इस्तेमाल की है, उसका भी इफेक्ट अच्छा आता है। लो की का जो मूड आप क्रिएट करना चाहता है, लो की में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। सो कंपोजिशन, सिंपल कंपोजिशन, पेंटेड बैकग्राउंड, I've tried to create a story here. So variety and emphasis and unity, आपको हर पिक्चर में मेरे जो प्रॉप्स है, एलिमेंट्स है, यूनाइटेड लगेंगे। अगर यहाँ कैप्सिकम के साथ में थोड़ा गैप था तो उसको कैप्सिकम ने कवर कर लिया। यहाँ रूल ऑफ ऑड को फॉलो किया गया है। फोटोग्राफी का रूल है रूल ऑफ ऑड। 1, 3, 5, 7 एलिमेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो 3 टोमेटो पीसीज मैंने यूज़ किए इसमें। तो एक फ्लो मोमेंट, इसको बहुत प्लानिंग से इसको करना पड़ता है, और कैसे इसको होल्ड करना है, कैसे इसका फ्लो बनाना है। तो थोड़ा सा फोटोशॉप से टेक्सचर क्रिएट किया है। एक कैक्टस का मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी शेप मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, इसको तो मार्केट से लेके आया, तो इसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स मैंने किए। आज ये बड़ा हो गया है और इसके कई और भाई बहन हो गए हैं। सिक्स एलिमेंट्स, अगर 7-8 कर देंगे वो आपका कंपोजिशन इतनी सक्सेस वीक हो जाएगी। टच ऑफ कलर, एक कैंडल है जो नीचे मैंने रखी है, और ये सिर्फ फोटोग्राफी के ही इस्तेमाल होती है। इसका कैंडल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेकोरेशन पीस की तरह। तो ये प्रॉप्स है, ये जो सारी प्रॉप्स आप देख रहे हैं कि अर्दन वेयर्स है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, अच्छी अच्छी शेप के, बाहर निकलते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको लाते हैं, उसको साफ करते हैं, पेंट करते हैं, उसके बाद में कलेक्शन में इसको रखते हैं, उनको यूज़ करते हैं। और जो प्लेट्स है, क्रॉकरी, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करता हूँ डॉक्टर साहब, और कोई क्वेश्चन ले सकते हैं अभी थोड़ा, अगर कोई किसी का। कभी कोई लोग, सब लोग बोर तो नहीं हो रहे, सब ठीक है? Emphasis and interruption are both almost similar or not? नहीं, एम्फेसिस देखिए, इंटरप्शन तो पैटर्न अगर आप यूज कर रहे हैं तो पैटर्न का इंटरप्शन होगा। एक ही तरह के लोग हैं, कई बार आपने देखा होगा कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं, वहां एक बच्चा पीछे को देख रहा है, बहुत सारे लोग उसको फोटो बनाते हैं। एक पैटर्न है और वहाँ इंटरप्शन है, और वो इंटरेस्टिंग है। एक मेरी अवार्ड विनिंग पिक्चर है जो होली होला, ये मथुरा वृंदानंद गांव की होली है। वहाँ सब लोग एक तरफ थे और कलर था बहुत सारा, और एक आदमी एकदम पीछे घुमा और इंटरप्शन, पैटर्न इंटरप्शन हो गया। उस पिक्चर को गोल्ड मेडल मिलता है।
और जो एम्फेसिस है वो किसी भी पैटर्न, उसको पैटर्न की जरूरत नहीं। तो चलिए, वासुदेव चक्रवर्ती जी भी आ गए हैं, और काफी हमारे सिटी से, शहर से परवीन जग्गी जी है, विनोद चौहान जी है। विनोद चौहान फेमस फोटोग्राफर, एमिनेंट आर्टिस्ट एंड माय स्टूडेंट। और जग्गी जी है, आजकल जग्गी जी सलोन चेयरमैन है। अग्रवाल साहब, बीके अग्रवाल जी, एंड और फेमस पर्सनालिटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बीजीएम नायर। How do you light the background so that there is no shadow seen there? तो जैसे मतलब जो बैकग्राउंड है वो कितनी दूरी पे होता है प्रॉप से। और दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए प्लेट वगैरह है, अगर वो प्लेट वगैरह दीवार से या जो बैकग्राउंड है उससे सटे हुए नहीं है, तो आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे उसको खड़ा करते हैं। जैसे राउंड शेप में बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स थे जो मतलब अपने आप नहीं वो जगह पे टिक सकते। तो उसके लिए भी कुछ आइडिया बताइए, और लाइटिंग के बारे में कुछ बताइए कि कैसी लाइटिंग स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में अच्छी लगती है, कौन से एंगल से होनी चाहिए, कितनी लाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सब भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब के बैकग्राउंड और प्रॉप्स में कितना डिस्टेंस है। मैं ज़्यादा डिस्टेंस रखता हूँ ताकि उसका जो शेडो है, बैकग्राउंड मेरा क्लीन रहे। करीब 1 फुट के करीब मैं डिस्टेंस रखता हूँ, गैप, या 10 इंच के करीब गैप होता है। जी आपका दूसरा क्वेश्चन था प्रॉप्स को कैसे खड़ा करते हैं। उसके लिए एक मैंने जुगाड़ किया। जुगाड़ समझते हैं आप? पंजाबी वर्ड है हाँ जुगाड़। जी, हाँ जी, हर ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में है शायद। अच्छा, गुजरात में भी चलता है। हाँ जी। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब जुगाड़ किया हुआ मैंने। उस जुगाड़ के साथ उसका खड़ा कर देते हैं, और टेप वेप लगा के कुछ ना कुछ तो देखिए करना पड़ता है ना, उसके बिना होता है नहीं। आपका तीसरा क्वेश्चन था लाइटिंग। देखिए, लाइटिंग के लिए मैंने जैसे बताया था, मैं बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज करता हूँ। स्ट्रोब लाइट 135 mm ऑक्टागोनल सॉफ्ट बॉक्स। और उसका जो डिस्टेंस है, मैं साइड लाइटिंग मेरी फेवरेट है। एक तो रिफ्लेक्टर होता है, और साइड लाइट, साइड से मैं लाइट अप करता हूँ। और जब हाई की करना होता है, हाई की को थोड़ा फ्रंट से। और राइट साइड शेडो को फिल करने के लिए मैं रिफ्लेक्टर ही यूज करता हूँ। मैं सेकंड लाइट नहीं यूज करता हूँ। हाई की में भी ओनली आई यूज ओनली वन लाइट, और जो तो सेकंड लाइट है वो रिफ्लेक्टर एज ए सेकंड लाइट काम करती है। तो आप मतलब रिफ्लेक्टर ही इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकंड लाइट, जी अगर आपको मतलब वो साइड इल्यूमिनेट करनी है तो। जी जी, कोई बिल्कुल। कुछ एक चित्र में आपने खाली बैक लाइटिंग की है और वो एक आपने वहां बता दिया। वो बहुत कम किया मैंने, एक सेशन में किया था। मुझे जो है सिंगल लाइटिंग अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि फ्रंट लाइटिंग करते हैं, तो फ्रंट लाइटिंग में फिर टेक्सचर कहाँ से आएगा अगर नहीं नहीं आप। डॉक्टर साहब, मैंने नहीं बताया फ्रंट लाइटिंग मैं करता हूँ। हाँ जी, जैसे आपने बताया अभी मैंने कि बताया हाई। साइड साइड लाइटिंग। हाँ जी, हाई की में आप फ्रंट लाइटिंग करते हैं तो नहीं नहीं, वो भी साइड लाइटिंग ही होता है। क्योंकि ओके। पता है क्या, साइड लाइटिंग के फायदा, मुझे थ्री डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट करना है प्रॉप्स में। हाँ जी, फ्रंट लाइटिंग से नहीं होगा। हाँ जी, वो टेक्सचर भी तो चला जाएगा और हाँ जी, हाँ। मैं हाई की में भी ऑलमोस्ट साइड, मतलब 90 डिग्री नहीं होता, उसको 60 डिग्री 70 डिग्री पे ले आता हूँ। 60 to 70 डिग्री मैं अपना सॉफ्ट बॉक्स रखता हूँ, और दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टर। और वो बाकी टॉप से करीबन कितनी ऊंचाई पे होती है लाइट? प्रॉप से करीब 1 या 2 फुट ऊंची होती है। ओके। तो और चलिए, सबके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तो बता ही रहे हैं डॉक्टर साहब ने। हाँ जो भी जी, आप पढ़ लीजिए, जिसका भी जो भी क्वेश्चन होता है। हाँ तो जी, उसके ये भी बता सकते हैं आप तो अच्छा होगा कि किसका क्वेश्चन है, नाम से बाय नेम। हाँ जी। तो चलिए, मैं आगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। स्लाइड स्लाइड के साथ पीपीटी। देखिए, एनी कैमरा कैन टेक गुड स्टिल लाइफ पिक्चर्स। द कैमरा यू हैव इज द बेस्ट वन। मैनुअल मोड, मैनुअल फोकस,
आई रिकमेंड मैनुअल मोड, मैनुअल फोकस। कैमरा कोई भी हो चलेगा, लेकिन एक कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। थोड़ा क्वालिटी तो में तो फर्क पड़ता है, फुल फ्रेम यूज करेंगे तो बेटर थोड़ा होगा। लेकिन मेरे जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं, मैं तो फुल फ्रेम बाद में आया, ये क्रॉप फ्रेम से सारे के सारे इमेजेस है विद 50 mm लेंस सोनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फुल फ्रेम ही होना चाहिए। और लेंस फोकल लेंथ रेंज फ्रॉम 50 mm प्राइम क्रॉप फ्रेम फॉर क्रॉप फ्रेम टू 135 mm इज ए गुड चॉइस। अगर क्रॉप फ्रेम है तो 1.8 मैंने 50 mm यूज किया है, और सारे के सारे रिजल्ट उसी के ही। लेकिन मैं फील करता हूँ कि अगर 70 mm होता तो बेटर है, लेकिन अभी मैं मैक्रो 105 mm फॉर फुल फ्रेम यूज करता हूँ। तो लेंस कैमरा इतना मैटर नहीं करता, आपका मैटर करेगा लाइटिंग, कंपोजिशन, प्रॉप्स। मस्ट हैव स्टडी ट्राइपॉड थोड़ा, क्योंकि ट्राइपॉड में आप फ्री हो तो अच्छा है, ट्राइपॉड पे होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो आपने बताया कि क्रॉप में आप 50 mm इस्तेमाल करते हैं और फुल फ्रेम में करीबन 135। तो आप जो बोल रहे हैं कि 75 mm होता तो अच्छा रहता, तो उसके साथ 1.5 का क्रॉप जोड़ना है, क्रॉप फैक्टर लगाना है, मतलब वो करीबन 110 का होना चाहिए था, ऐसा कहना था आपका? नहीं, जब मैं क्रॉप कैमरा क्रॉप फ्रेम यूज कर रहा था 50 mm, हाँ जी। तो 50 mm से थोड़ा सा आपको थोड़ा नजदीक जाना पड़ता है। तो मैं उस टाइम फील कर रहा था कि क्रॉप में अगर 70 mm होता तो बेटर था, लेकिन फुल फ्रेम में आपको एटलीस्ट 85 mm या 100 mm यूज करना पड़ेगा, ताकि पर्सपेक्टिव वगैरह का थोड़ा प्रॉपर कंट्रोल, ताकि उसमें ना फुल फ्रेम में 50 mm नहीं चल सकता है। फुल फ्रेम में 85 mm, 105 mm, 100 mm इज बेटर। ओके, तो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने के लिए अगर लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। जी। और दूसरी बात कि व्हाट अबाउट माइक्रो लेंसेस, लाइक माइक्रो लेंसेज आर गुड। आई एम यूजिंग nowadays I am using macro lens sigma for Canon 810। तो वो स्टिल लाइफ के लिए अच्छे रहते हैं? स्टिल लाइफ के लिए भी अच्छे, पोर्ट्रेचर के लिए अच्छे, और ड्रॉपलेट फोटोग्राफी के लिए एक्चुअली मैंने लिया है, तो ओके, ड्रॉपलेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छे। तो वो भी अराउंड 105 आसपास के मैक्रो लेंस आप कहते हैं कि अगर फुल फ्रेम कैमरा है तो वो ज्यादा सही रहेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। दूसरी बात है रिमोट, अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है, परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड बाय यूजिंग रिमोट कंट्रोल और ऐप। देखिए, मैंने जितना भी काम किया है, मेरे पास सोनी का एक बेसिक सा A6000 कैमरा था, और A6000 के साथ उसका ना एक मोबाइल ऐप में से कंट्रोल हो जाता है। कैमरा बेसिक है, लेकिन उसके फीचर कमाल के थे। वो जो सारा फ्रेमिंग है, तो मोबाइल ऐप को लेके मैं टेबल पे खड़ा हो जाता था, और मैं मोबाइल में देखता था कंपोजिशन। मुझे कैमरे में जाने की जरूरत नहीं है। वो जो कंपोजिशन मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में उसी टाइम आ रही है, और मैं क्लिक भी करता था तो मोबाइल से ही क्लिक करता था। तो इस टाइप का कुछ है, आपके पास रिमोट कंट्रोल है तो बेटर, उससे आपको अच्छा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड फॉर स्टिल लाइफ शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट और compete विद द सब्जेक्ट। न्यूट्रल कलर, अगर लो की है डार्क, हाई की है तो लाइट। बैकग्राउंड फॉर स्टिल लाइफ, chart paper, mount sheet, good quality, Sunmica. I have used Sunmica in many my pictures. Matte finish Sunmica. Painted background on chart paper or mount sheet can be used. तो माउंट सीट क्या होती है, अगर आप बताएं जो हमारे नए दर्शक हैं उसके लिए, कि माइक माउंट सीट किसे कहते हैं? देखिए, माउंट शीट होती है जो फ्रेमिंग की जो फर्म्स होती है, ये फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई पिक्चर फ्रेमिंग के लिए जो बॉर्डर बनाते हैं, तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेमिंग की शॉप में माउंट शीट अवेलेबल होती है, ये ओके। स्टेशनरी की शॉप में नहीं मिलेगी।
ओके, तो फ्रेमिंग की शॉप में अगर आप माउंट शीट मांगेंगे तो मिलेगी, और ज्यादातर वो वाइट या ब्लैक या ग्रे ऐसे शेड्स में मिलेगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाइट एंड ब्लैक ही मुझे मिलती है, और ग्रे में शायद नहीं है। हाँ जी, लेकिन हो सकता है कि आपका आइडिया ठीक है, हो सकती है। हाँ जी। तो ये सभी फ्रेमिंग की दुकानें नहीं रखती, जो शहर की लीडिंग दुकानें हैं फ्रेमिंग की, उन्हीं के यहाँ मिलेगी, और इनको ले सकते हैं। इससे बड़ा साइज भी होता है, लेकिन ये सफिशिएंट है हमारे लिए। और हार्ड वाला नहीं लीजिए, इसमें गेज का होता है। जो हार्ड होता है वो हमें कंट्रोल नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको मुड़ जाता है इसलिए। हम्म, सो ये जो पेंट है, इस तरह से मैं पेंट करना सिखाता हूँ। अब लाइटिंग के बारे में बात करें। लाइटिंग सोर्सेज फॉर स्टिल लाइफ, स्ट्रोब लाइट यूज कर सकते हैं, स्पीड लाइट जो फ्लैश सॉफ्ट बॉक्स में यूज कर सकते हैं, और एटलीस्ट 100 mm का सॉफ्ट बॉक्स रिकमेंडेड है। इससे छोटा होगा वो बात नहीं बनेगी। मैं 135 mm यूज करता हूँ। रिफ्लेक्टर 5-in-1 फॉर फिल इन शेडो और एज कट लाइट। रिफ्लेक्टर होल्डर भी होना चाहिए। रिफ्लेक्टर, अगर आप अकेले हैं स्टूडियो में तो रिफ्लेक्टर को होल्डर में लगा दीजिए, स्टैंड में रख दीजिए। एक बार रख दिया, हिलेगा नहीं, किसी को खड़ा करेंगे वो सारा मूव हो जाएगा। रिफ्लेक्टर होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड लाइट अगर आपने यूज करनी, ऑप्शनल है। बैक लाइट अगर कोई है तो उससे क्या होता है, लेकिन वो मूड को खत्म कर देती है सेकंड लाइट। स्ट्रोब लाइट विद सॉफ्ट बॉक्स, ये मेरा इसका एलिन क्रोम का सॉफ्ट बॉक्स है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। सारी की सारी मेरा स्टूडियो पोर्ट्रेचर और स्टिल लाइफ फोटोग्राफी इसी में होती है। ये रिफ्लेक्टर 5-in-1, और ये रिफ्लेक्टर होल्डर पे इसको लगा दीजिए, और एक बार आपने लगा दिया तो उसके बाद फिर ठीक है। एक तरफ गोल्डन, ये रिफ्लेक्टर होल्डर मिलते हैं मार्केट में अराउंड 2000 रुपीज। इसके साथ है रिफ्लेक्टर होल्ड हो जाते हैं। और इनर ट्रांसलूसेंट रिफ्लेक्टर होल्डर फॉर सनलाइट फोटोग्राफी, ये राइट साइड में है रिफ्लेक्टर होल्डर। विंडो लाइटिंग से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सबसे आसान फोटोग्राफ, स्टिल लाइफ आसान तो नहीं है, लेकिन आपको तामझाम नहीं चाहिए, बहुत बड़ा फैंसी स्टूडियो नहीं चाहिए। एक विंडो में खड़े हो जाइए, वहाँ अपने प्रॉप रख लीजिए, और वहाँ से आपको अमेजिंग लाइट मिलेगी, और नॉर्दर्न लाइट प्रेफरेबली। सेकेंड चॉइस इज साउदर्न लाइट। थर्ड चॉइस बाकी जो बच गई है। तो बाकी जो डायरेक्शन में दिक्कत क्या है कि जो डे लाइट है वेरी करती रहती है। नॉर्दर्न में क्या होता है, एक ही तरह की लाइट आपको सारा दिन मिल जाएगी। अब प्रॉप्स का आइडिया मैं थोड़ा देना चाहता हूँ। फर्स्ट ट्राई एट होम, जो भी आपके घर में डिस्कार्डेड आइटम है, डिस्कार्डेड टॉय है, कुछ भी है, बेंगल्स है, ज्वेलरी है, वो सारी चीज चेक कर लीजिए। घर में कोई एंटीक्स है, डेकोरेशन पीसीज है, उनका भी इस्तेमाल कर लीजिए। और बॉटल्स फ्रॉम जंक स्टोर, अदर इंटरेस्टिंग आइटम विद गुड शेप फ्रॉम जंक स्टोर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉटल बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स की होती है, लेकिन कहाँ मिलेगी? या तो जिनको वो शौक होता है उनके पास तो मिल जाएगी, लेकिन जिनको शौक नहीं है वो क्या करेंगे? इनको कबाड़ी की दुकान में अपने जो है थोड़ा सा हाथ पैर गंदे करने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। अब वहां से लाने के बाद उसको वॉश करना पड़ेगा, कई कई घंटों लग जाते हैं उसको धोने के लिए, और धोने के बाद उसको पेंट करना है। और एंटीक स्टोर जो होते हैं वहां से मिल जाएगा बहुत सारी चीजें। क्रॉकरी स्टोर से मिल सकता है। क्रॉकरी स्टोर से उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर आपके पास भी कोई डिस्कार्डेड आइटम्स है, कोई क्रैक वाली टूटा फूटा है, क्योंकि कई बार हमने एक कॉर्नर छोटा सा टूटा होता है जिसको हम पीछे छुपा देते हैं, बड़े चीप रेट में क्रॉकरी स्टोर से ये लोग दे सकते हैं। टॉय शॉप में जाइए। और एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल। अच्छी शेप, मैं जो ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करता हूँ, ये इसका जो कैप्सिकम, कलरफुल कैप्सिकम इसका इस्तेमाल करता हूँ, और टमाटो है, और गवा है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स भी आर्टिफिशियल मिल जाएंगे आपको, कि एक बार आप ले आए फ्रूट्स, उसके बाद वो आपने 2 महीने बाद अगर करना है तो फिर नहीं होगा।
हालांकि मैंने एक बार 1 महीना फ्रिज में रखा फ्रूट और वो ठीक रहा, और उसके बाद फोटोग्राफी की और बढ़िया हो गई। कुछ और वर्क मैं दिखाना चाहता हूँ। सर तो सवाल है विश्वास जी का कि सब्जेक्ट से जो लाइट है उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? देखिए ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये इस पे आपका सॉफ्ट बॉक्स के साइज पे भी डिपेंड करता है, और मैं जो डिस्टेंस रखता हूँ मेरा होगा करीब 3 से 4 फुट में रखता हूँ। और यहाँ जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट है उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट, जितना नजदीक रखेंगे, दूर करने से क्या होगा, नजदीक करने से क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग सभी आर्टिस्ट को होना चाहिए। हाँ जी, और बड़ा रखने से वो लाइट का जो ग्रेडेशन है वो एकदम स्मूथ रहेगा, राइट? उसमें जो रैप अराउंड इफेक्ट, बड़ा सॉफ्ट बॉक्स रहने से रैप अराउंड इफेक्ट, एक आपका सुराही है, गोल चीज है, उसके चारों तरफ लाइट जो है, जो शेडो होगी वो मतलब ग्रेजुअली वो उसका ग्रेडेशन होगा। ये और हाँ जी, लाइट को नज़दीक रखेंगे तो जो दूर वाले प्रॉप्स है वो कंट्रास्ट हो जाएगा, वहाँ शेडो चली जाएगी। लाइट को अगर आपने 1 फुट पे रख लिया, अगर आपने 10 फुट पे रख लिया, तो इक्वली सारे जो है सभी को बराबर लाइट मिलेगी। लेकिन हमें थोड़ा सा वही उसके बीच वाला जो है 3, 4, 5 फुट के अराउंड हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ रखना है। जी तो सब्जेक्ट के ऊपर मतलब जो नियर सब्जेक्ट है, लाइट से नजदीक वाला सब्जेक्ट है और लाइट से दूर वाला सब्जेक्ट है, जी। तो उसमें वो ग्रेडेशन दिखना चाहिए। आप एज अ मास्टर्स क्या कहेंगे नहीं कि देखिए, कि हमें वो एक तरह से दोनों मतलब जो लाइट है उसमें बहुत कम ग्रेडेशन हो और स्मूथ दिखे, वो ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, इसके बीच का है डॉक्टर साहब। हमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट भी नहीं चाहिए कि नज़दीक वाला प्रॉप जो है वहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है, पीछे वाले प्रॉप पे कम है। वो कैसे होगा, जब आप नज़दीक हम लाइट कर देते हैं। हाँ जी। जब लाइट अगर को बहुत दूर कर दी तो बराबर लाइट मिलेगी सभी की। हमें ओके। बीच में रखना है। 3, 4 फुट में क्या होगा कि आपको ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वाले पे डेफिनेटली ज़्यादा होगी, जो कि हमें चाहिए। वो जो इफेक्ट क्रिएट करना है, हमारा जो स्टार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉप होता है। और इसलिए ये बीच का खुद ये एक्सपेरिमेंट से होता है। मैंने इसको मतलब इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए मुझे 6 महीने लगे थे डॉक्टर साहब। ओके। ये लाइट बॉक्स, लाइट का सॉफ्ट बॉक्स मुझे कहाँ रखना है, हाँ जी, वो बहुत ट्रिकी है। कौन सा पॉइंट। और उसके लिए मुझे 1000 एक्सपेरिमेंट से निकलना पड़ा, जो रिजेक्ट किए मैंने, जो स्केच बनाया उस पर डिटेल लिखी, और फाइनली मुझे मेरा पॉइंट मिल गया। और वही जो मैं क्लासेस आजकल सिखाता हूँ उनको रेडीमेड, उनको 1000 फेलियर से नहीं गुजरना पड़ेगा। उनको रेडीली उसका रीज़न मैं बता देंगे। दूर रखेंगे तो क्या होगा, नज़दीक रखेंगे क्या होगा, बाउंस करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट रखेंगे क्या होगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं इसमें। जी। जी। और नेचुरल लाइट के बारे में आप बता रहे थे, तो अगर आप मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ की लाइट पसंद करेंगे, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ की लाइट पसंद जो करेंगे? आपका अगर विंडो नॉर्थ को फेस कर रही है, हाँ जी। नहीं मैंने कौन सा लिखा था, हाँ, नॉर्थ। नॉर्थ। सो वहाँ क्या होगा कि वो वेरिएशन नहीं आती लाइट में। हाँ आपके जी, 10 बजे भी वही लाइट होगा विंडो से, 3 बजे दो भी वही बजे भी होगा, वही 12 बजे भी होगा। वही होगा। जी तो जी। अगर आपके घर में वो है ही नहीं, जैसे मेरे घर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हाँ जी। कोई भी है उसको उसको उसमें यूज करनी पड़ेगी, हाँ जी। जो भी है। तो अगर आपके पास ये है तो वो बेटर है। हाँ जी, क्योंकि वो उल्टी तरफ की लाइट है, क्योंकि ज्यादातर जो सूर्य है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ की ओर से जाता है, तो वहाँ बहुत लाइट वेरी होती है। ईस्ट एंड वेस्ट में भी बहुत वेरी होती है, जबकि नॉर्दर्न साइड पे आपको 10 बजे से लेके करीबन 4-5 बजे तक
वैसी ही लाइट मिलेगी, इसीलिए दीप जी ऐसा कह रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर विंडो मान लीजिए स्टिल लाइफ ही नहीं, पोर्ट्रेट या कुछ भी आपको खींचना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आप नॉर्थ की लाइट इस्तेमाल करें, वो ज्यादा अच्छा है। राइट दीप जी? बिल्कुल। क्या डिफरेंस होता है नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में, और कुछ पॉइंट ध्यान रखने चाहिए अगर नेचुरल लाइट में हम स्टिल लाइफ शूट करते हैं तो? अहमद जी का सवाल है, वो हमसे बांग्लादेश से जुड़े हैं। जी हाँ, अहमद जी मेरे स्टूडेंट थे। तो देखिए, नेचुरल लाइट के, विंडो लाइट की अपनी बड़ी अच्छी ब्यूटी होती है कि डिफ्यूज लाइट मिलती है, जो रैप अराउंड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। अदर साइड से रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लाइटिंग हमें विंडो लाइट से भी मिल सकती है। लेकिन सेम चीज़ हम स्टूडियो में क्रिएट कर लेते हैं, और स्टूडियो में सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में होती है। स्टूडियो का फ़ायदा यह है कि आपने एक बार लाइट फिक्स कर दी तो वही लाइट रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं। और थोड़ा बहुत हम वहाँ से लाइट को मूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास स्टूडियो नहीं है, उनके लिए विंडो लाइट से कोई कमी नहीं है। इक्वली गुड अवार्ड विनिंग वर्क्स बनाए जा सकते हैं। सर अगर आपने विंडो लाइट में अगर कुछ काम किया है तो जब आप वो डिस्प्ले ओके, करें तो अगर बता मैं दीजिएगा, जिसकी वजह से जैसे आएगा तो मैं बता देता हूँ। मैंने विंडो लाइट में, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो है, और मैंने विंडो लाइट में सिर्फ क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया है। अगर बीच में कोई आता है तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ, है ना। हाँ जी सर। तो ये मेरी पिक्चर है, लो की मैक्सिमम अवार्ड विनिंग पिक्चर है, और डॉक्टर साहब ने भी यही सेलेक्ट की हमारे फ्लायर के लिए, पोस्टर के लिए। इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जो मुखोटा है, जो फेसिस हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट किया है सर आपने। थैंक यू, थैंक यू। भाई थोड़ा बहुत इस टाइप की मैंने किया है, बुक्स हैं, एंटिक्स वगैरह, ये कर सकते हैं इस टाइप की फोटोग्राफी। लेकिन मुझे पर्सनली इस टाइप की पसंद नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ये जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, सारी चीज़ें, मुझे जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, एस्थेटिक्स है, वो ये बहुत कम मैंने इन पे काम किया है। शायद स्टार्टिंग में लर्निंग जब मेरा चल रहा था उस टाइम मैंने किया है। मुझे ये चीज़ पसंद है, इसमें सारा कुछ कंट्रोल में है। टोनल वैल्यू, ग्रेडेशन, मूड, एस्थेटिक्स, सारा इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। टच ऑफ कलर, एम्फेसिस, कंपोजिशन, यूनिटी, हार्मनी। तो यहाँ इस तरह से हम इसको बैंड दे सकते हैं, इस टाइप के फ्लावर मिलते हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं आप। और सॉफ्ट लाइट, कंट्रास्ट नहीं है हमारे प्रॉप्स पे, ये मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की इसकी। और बैकग्राउंड में शायद सनमाइक का इस्तेमाल किया मैं, ब्लैक सनमाइक का मैट फिनिश। और ये जो पीछे जाइए सर एक फोटो प्लस, हाँ जी। तो यहाँ जो ज्वेलरी बॉक्स रखा है वो थोड़ा अलग है बाकी सबसे, तो उसके पीछे कुछ आइडिया, जैसे आपने पहले बताया कि एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे से हारमोनियस होते चाहिए, तो ये थोड़ा अलग थलग रखा है आपने। हाँ, तो ऐसा क्यों है, और इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये एक स्टोरी का पार्ट है। ये ज्वेलरी बॉक्स नहीं, मेरे लिए एक हाउस है। ओके। और ये इस टाइप से ये बैलेंस कर रहा है, यहाँ प्रॉपर बैलेंस हो रहा है ना। और जो और प्लेट है, कनेक्शन, जो है, कनेक्शन की फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड हमारा लाइट नहीं है, डार्क है, और टोन्स में बहुत कम वेरिएशन है। हाँ जी। तो इस तरह से भी ये जो हमारा जो एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है या एम्फेसिस वाला है, उसको इस तरह से हम रख सकते हैं। और इसमें ये होना चाहिए कि मिनिमम आपका एलिमेंट हो और स्पेस का प्रॉपर यूज हो, जो नेगेटिव स्पेस है उसको प्रॉपरली इसको यूज किया गया है। तो ये कंपोजिशन मुझे पसंद है, और इसमें अवार्ड विनिंग पिक्चर है, बहुत सारे अवार्ड इसको मिले। और शायद मेरे ख्याल से ये बॉक्स और जो प्लेट है उसके बीच में जो शैडो है, और जो मतलब उसका जो मतलब टोनल वैल्यू है,
वो एक सरीखा है और शायद वो शेडो ही एक दूसरे से जोड़ रहा है दोनों चीजों को, शेडो ही जोड़ा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल। लग रहा है। यस यस, ऐसा ही है। तो यहाँ सारे कनेक्टेड है, सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, यूनिटी और वैरायटी क्रिएट करने के लिए, एम्फेसिस के लिए एक केटल छोटी सी इस्तेमाल की है। तो आज जैसे कि ये अगले जो पीछे पीछे गया वो पिक्चर में, तो मतलब आप ये जो कलर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने डार्क ग्रे लिया है, ब्लैक नहीं लिया है, और ये वाइट, तो आप वो मतलब पहले से इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा कलर बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ, या ऐसा कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास जो प्रॉप्स की कलेक्शन है ना, तो जब मैं कंपोजिशन करता हूँ तो जब केटल की जगह मैंने 15 और चीजें रख के देखी होगी, ओके। है ना। तो प्लेस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं या फोटो भी लेते हैं, कौन सा किसमें इम्पैक्ट है, किसमें स्टोरी बन रही है। तो ये कैटल, ये जो इसका साइज बहुत छोटा है, इस कैटल का जो है, हाँ इसकी जी। हाइट मेरे ख्याल 3 इंच के करीब होगी सारी। और ये डेकोरेशन पीस टाइप की है कि ये जो केटल है, तो ये बहुत सारी पिक्चर में इसको यूज करता हूँ एज ए सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, एज ए एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। तो इसमें इसके साथ अच्छा जा रहा है। हाँ जी, और इसका जो मतलब जो स्क्वायर प्लेट है उसके साथ जो फ्रेमिंग हुआ है उसका, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। जी। और ये जो ग्लासेस है, 2 ग्लासेस एज ए लाइन, और इसको शेप मैंने इस तरह से यूज करता हूँ, कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे जो मेरे प्रॉप्स होते हैं, इसको ऐसे लिटा के मैं यूज करता हूँ। ये मिट्टी के बने हुए स्टैचू है, और ये हर जगह मिल जाते हैं इस टाइप के। और तो इनकी स्टोरी है, स्टोरी है इसके पीछे क्या, मुझे भी याद नहीं आ रही क्या है। तो यहाँ मैंने कोई कलर नहीं यूज किया है, बैकग्राउंड पेंटेड है, जिस कलर से प्रॉप्स पेंटेड है उसी वही टेक्सचर बैकग्राउंड का भी क्रिएट किया है। ये तो पहले देख लिए हैं, ओल्ड हैबिट। ड्रैगन फ्रूट का काफ़ी मैंने कोशिश की है कि बड़ा अच्छा इसका पैटर्न होता है, इसका शेप होती है। ये जो पीछे आर्क शेप में मैंने बनाया है, बहुत ढूंढा इसको, मैंने क्रिएट किया। मेरे माइंड में था कि इस टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए, इसको मार्केट से पता नहीं क्या क्या कलेक्ट करके इस टाइप का बनाया इसको, शेप को, और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया। उसी का जो ब्लैक एंड वाइट देखा था उसका कलर वर्जन। एक वर्कशॉप में ये बनाया था, डे लाइट में। यहाँ थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा कर दी है मैंने, ब्लैक वाइट इस तरह से। तो हर तरह का एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए। जो भी प्रॉप्स है उनका अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग जगह, अलग अलग कंपोजिशन, सर, तो डिफरेंट। जो आपके फ्रूट्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट और शाइनी है, तो वो मान लीजिए कैप्सिकम है या ऑरेंज है या ऑनियन है, तो जो नेचुरल है, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसको साइन देने के लिए और कुछ करना पड़ेगा कि फिर वो वैसे ही आप कुछ मतलब ऑयल वगैरह लगाते हैं या कुछ ऐसी कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उसके कलर पॉपअप्स हो जाए और वो ज्यादा वाइब्रेंट दिखे? नहीं डॉक्टर साहब, हमारे जीरकपुर में, पंजाब में ऐसे ही मिलते हैं। ओके। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। वो इसके लिए फ्रिज में रख देते हैं ना, तो कई बार उससे जो मॉइस्ट का इफेक्ट आता है। कुछ बहुत सारी पिक्चर मैंने उसमें ली है, आपने ओवरनाइट रख दीजिए और सुबह एकदम से निकाल के उसका आप लेंगे फोटो, तो उसका बहुत ही टेक्सचर और उसका सरफेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बाकी थोड़ा सा बाद में करना पड़ता है पोस्ट में। सो ये अभी लेटेस्ट मेरा ये किया है, ये आज मैंने लगाई है, सबका मालिक एक टाइटल के साथ। अब हाई की लो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रीफ में, मेरे का टाइम काफ़ी हो गया डॉक्टर साहब।
तो नहीं है हमारे पास टाइम, तो आप चिंता मत ओके, करें, आप अभी भी आधा घंटा ले सकते हैं। तो लो की, हाई की, मेरे सारे ज़्यादातर वर्क है, मिडल की मैं यूज़ नहीं करता है। लो की में डार्क टोन होती है, हाई की में लाइट टोन होती है। लो की में हम कंट्रास्ट को इंटेंसिफाई करते हैं, हाई की में कंट्रास्ट को रिड्यूस करते हैं। लो की में ब्लैक डार्क बैकग्राउंड एंड क्लोथिंग, वाइट में, हाई की में वाइट लाइट बैकग्राउंड एंड क्लोथिंग। लो की में अवॉइड लाइट ऑन बैकग्राउंड। लो की में जैसे डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, मैं बैकग्राउंड में लाइट नहीं जाने देता, उसके लिए कुछ कटर लगा लेते हैं कई बार, ताकि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड मिल जाए। लेकिन हाई की में हम स्पेशल बैकग्राउंड के लिए अलग लाइटिंग देनी पड़ती है। लो की सोम्बर, मूडी, ड्रामेटिक मूड, एंड हाई की अपबीट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। रेशो है। लो की में शेडो हमारा मेन एलिमेंट होता है, हाई की में हम शेडो का अवॉइड करते हैं। लो की कैन बी डन विद वन लाइट एंड हाई की मोर देन वन लाइट नीड इट। अब चलिए हाई की तरफ चलते हैं। हाई की में सेम जैसे बताया कि वाइट बैकग्राउंड और लाइट कलर के प्रॉप्स, कंपोजिशन सेम, पेंटेड प्रॉप्स। ये डॉक्टर साहब है मेरा डे लाइट का, डे लाइट में मैंने इसका इस्तेमाल किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें हाई की में अदर साइड रिफ्लेक्टर का कम इस्तेमाल किया, मुझे शेडो चाहिए यहाँ, हाई की में भी चाहिए। 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए शेडो से होगा। कंपोजिशन इज एवरीथिंग, सिंपल प्रॉप्स बट कंपोजिशन है इंपॉर्टेंट। बहुत केयरफुली कंपोजिशन करिए, केयरफुली प्रॉप्स का जो सिलेक्शन है होना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू। सो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। देखिए, मैंने अभी तक सारे तरीके बता दिए कैसे आप स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, कैसे अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। Mere very good gears cannot make one successful in still life photography, but 7 P's will. थोड़ा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ingredients for success 7 P's: passion, purpose, preparation, patience, perspiration, practice, perseverance। कई बार जब हम काम करते हैं बोरिंग लगता है, लेकिन मतलब परसिस्टेंसी एंड परसिवियर करना पड़ेगा, तो जाके हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने, मेरी एक ई बुक है 500 पेजेस वाटर ड्रॉपलेट फोटोग्राफी के ऊपर। सो डॉक्टर साहब यहाँ से कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं इधर। थोड़ा सा मेरे का अभी मेरा स्लाइड शो एंड ही है, थोड़ा सा कुछ और बातें करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो अगर स्टिल लाइफ के बारे में कोई अगला क्लास है तो बता दीजिए, जिसकी वजह से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, तो कृपया प्लीज इसके बारे में बताइए कि आपका अगला क्लास कब है, कैसे होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो ज्वाइन करने के लिए। श्योर डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने जैसे मैंने बताया था, मेरा फोटोग्राफी पैशन है, फोटोग्राफी करना और सिखाना भी मेरा पैशन है। लेकिन अभी जो मुझे आता है, सारे के सारे टॉपिक्स जॉनरा में मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरे स्टूडेंट बहुत ही एक्सेल कर रहे हैं और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स एंड टॉप के अवार्ड लेके आ रहे हैं। स्टिल लाइफ
10 अगस्त से स्टिल लाइफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग सितंबर में होगा, क्रिएटिव एंड सरियल डिजिटल मैनिपुलेशन अक्टूबर में, स्टूडियो पोर्ट्रेचर नवंबर में, लिक्विड ड्रॉपलेट फोटोग्राफी बेसिक दिसंबर में, ड्रॉपलेट फोटोग्राफी एडवांस लेवल की जनवरी में करेंगे 2022 एंड बेसिक फोटोग्राफी फरवरी 2022। नीचे कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हैं कि सरियल फोटोग्राफी में किस टाइप का होता है, पोर्ट्रेचर में किस टाइप का करता हूँ, और कुछ ड्रॉपलेट के भी पिक्चर्स है। सो ये मेरा कोर्स है स्टिल लाइफ। 10 तारीख से 10 अगस्त हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे 7:30 PM 8 क्लासेस होंगी और हर क्लास करीब 1.5 घंटे की होगी। ये सारी क्लास मैं जूम पे मैं करता हूँ और हर क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है। हर एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में बनाता हूँ और फेसबुक के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि लाइव कर देते हैं तो वहाँ रिकॉर्डिंग रहती है। आपको 1 साल तक रिकॉर्डिंग उसकी रहेगी हर क्लास की, तो आपको रिविजिट करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए वाइट बोर्ड वीडियो, ये जो है वीडियोस, ऑडियोज एंड लाइव, ये सारा कुछ करते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस ओनली नॉमिनल फीस ओनली 2400 रुपीज़। और जो मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, मैं स्टिल लाइफ फोटोग्राफी बहुत पहले से कर रहा हूँ, वो सब आपको रेडीमेड अवेलेबल होगा। जो भी सीक्रेट्स है, जो भी काफ़ी तो आज मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो 12-15 घंटे में बताऊंगा वो 1 घंटे में नहीं बताया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ जब स्टूडियो में सेटअप है कंपोजिशन के, वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉप्स को कैसे अरेंज करना है, वो इस टाइप के वेबिनार में पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जितना पॉसिबल था मैंने आज बताया है कि जो अगर क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहता इसको देख के भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस का ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी सेव होती है और आपको रिजल्ट बेटर आते हैं। और इसमें पीपीटी, वाइट बोर्ड, वीडियोस, लाइव, जूम, रिव्यूज, असाइनमेंट, पर्सनल हेल्प, पोस्ट कोर हेल्प इज श्योर। तो अभी तक 1 साल हो गया मुझे ऑनलाइन क्लासेस करते हुए। इससे पहले वर्कशॉप की मैंने, बहुत सारी वर्कशॉप की जिसमें हर डिफरेंट जर्नल पे किया है। तो ये कुछ लिंक्स है मेरे, आप मेरा जो मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9888-040-643। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो मेरा वेबसाइट है deepbhatiaphotography.com, इसमें सभी टॉपिक, जॉनरा, मेरा वर्क, पोर्टफोलियोज यहाँ अवेलेबल है। अगर कोई ई बुक खरीदना चाहता है उसको यहाँ से खरीद सकते हैं। इसकी ई बुक की कॉस्ट 1000 रुपया है। इसमें बहुत मेरी मेहनत गई है इस ई बुक बनाने के लिए। 500 पेजेस की ई बुक, बेसिक भी है, एडवांस भी है। और वाटर ड्रॉपलेट फोटोग्राफी कोई करना चाहता है तो ई बुक से भी कर सकता है, लेकिन इसकी क्लासेस अटेंड करें तो बेटर होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर हितेश पटेल जी का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे मौका दिया आप सब लोगों से बात करने का, और जो भी मैंने सीखा है वो सब सिखाने का। और जो फ्यूजी फिल्म सप्लायर एसोसिएशन और उनका सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। और आप सब लोगों का थैंक्स करता हूँ कि आप लोग ने बहुत पेशेंटली एंड तक ये सुना है, देखा है वेबिनार, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए हों और आपको ये जो वेबिनार है, मेरी जो प्रेजेंटेशन है, ये पसंद आई होगी। और जो भी अगर कोई इस कोर्स में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं, और मैं श्योर करता हूँ कि आपको बेस्ट इसमें दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये हम इसीलिए करते हैं कि आप ऐसे जो इंडिया के जाने माने फोटोग्राफर्स हैं उनसे जुड़े, उनसे कुछ सीखें और मतलब उनके क्लास वगैरह अटेंड कीजिए। ये एक इंट्रो था एक विषय का, है ना, एक क्लास नहीं था। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए क्लास में जुड़ना जरूरी होता है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और छोटे से समय में बहुत कुछ सिखाने का भी आपने प्रयास किया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी आपका।
ये जो दर्शक बाद में जुड़े हैं वो अगर मेरा नंबर चाहते हैं अगले वेबिनार्स में जुड़ने के लिए तो कृपया ये जो वी कार्ड है या जो QR कोड है उसको स्कैन कर लीजिए। तो आप के मोबाइल में मेरा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मेरा नंबर कृपया नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9427948000। तो ये जो वेबिनार है उसे हम वाव वेडनेसडे कहते हैं। हर वेडनेसडे को होता है, बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया इसके बारे में आप जो जानकारी है वो बाकी सबको भी दीजिए। और अगर इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया ये नंबर पे एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि आप कृपया प्लीज हमें अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर दीजिए और उसके साथ आपका पूरा नाम और आप कहाँ से हैं वो खाली आपको हमें बताना होगा और हम खुशी खुशी आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर देंगे। तो सभी दर्शकों का तहे दिल से मेरा धन्यवाद और दीप जी को भी तहे दिल से मेरा धन्यवाद। मैंने दीप जी की कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में डाल दी है। एक बार फिर से मैं डाल देता हूँ। तो आप सीधा दीप जी को वेबसाइट थ्रू या मोबाइल नंबर थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दर्शक मेरे से जुड़े हैं उनको मैं जब ये प्रोग्राम की फेसबुक की लिंक दूंगा उसके साथ भी मैं दीप जी की कांटेक्ट डिटेल्स दूंगा। तो वो भी एक तरीका है दीप जी से जुड़ने का। तो हर एक दर्शक का धन्यवाद और हम यहाँ ये वेबिनार समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वेडनेसडे को। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।